सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारै। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारै। परम सन्मानयोग चौर छतर तख्त दे मालक, वालिए दो जहां सरबरे कायनात दी चादर। रहम दे मुजस्मे गरीब निवाज, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शाम वेले तो विशेष समागमां विच हाजरियां भर रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों, गुरु साहिब जी दी अपार किरपा सदका लंबेरे समय तो गुरु बाणी दी अमृतमयी विचार जो अलग अलग विद्वानां दी रसना तो आप जी ने गुरु बख्शी हुई मत दे तहत श्रवण कीती है, और एक अंक तो लैके 1430 अंक तक करीब करीब अनुमानित जिहड़ा समा है 10 तो 12 साल का करीब समा लगता है। और दुनिया दे विच इहदा जिक्र करते ने लोग भई फलां बंदा उसने रजवाड़े ने उस बादशाह ने जग करवाया, बड़ा वड्डा खर्च करते, बड़े वड्डे इंतजाम हुंदे, दुनिया का इकट्ठ हुंदा। साडे वास्ते किसी जग का महत्व नहीं, साडा जग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की विचार है। जदों जदों सेवक गुरबाणी विचार नाल जुड़दा है, साडे जीवन दे बहुत सारे रहस ने, बहुत सारियां रमज़ां ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे अंदर मौजूद ने। ਗਿਆਨਵਾਨ सज्जन उन्हां कुंडियां नूं खोल के जदों संगत दे समक्ष रखदे ने ते सानू गुरबाणी विचों जीवन जाच प्राप्त हुंदी है। सचमुच अज जो विशा दास नूं बख्शिया गया है, विशा है शब्द गुरु। गुरबाणी दे विच शब्द शब्द जिहड़ा ये वार वार रिपीट होया है। साडे कोल इस तरह के ऐप ने, इस तरह के माध्यम ने अज दे समय विच कि गुरु ग्रंथ साहिब अंदर किहड़ा शब्द किन्नी बार आया है, अनुमानित उहदा भेद सानू लग जाता है, संपूर्णता नहीं कह सकते। मैं देख रहा सी कि जिहड़ा शब्द है सस्सा बब्बा ते दद्दा बिंदी पैर असीं आप लाउने हैं, ये करीब करीब गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जिहड़ा मुक्ता शब्द है ना, जिन्हों कोई लां दलां औंकड़ नहीं लगा, वो करीब 1400 बार आया। और जदों आपां देखने हैं कि शब्द सिहारी नाल जिहड़ा आया है वो करीब 1000 वार दे करीब आया है, ते जिथे शब्दी जां इतिहादक शब्द ने बिंदे सहित दर्ज कीते ने वो 15 तो 17 बार इस तरह के शब्द बाणी विच आए ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जिहड़ा शब्द गुरु है ये तुहानूं बहुत घट मिलेगा। शब्द का जिक्र बहुत होएगा। शब्द की है?
ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਥੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਣਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਅੰਦਰ ਲੜਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮਿਥ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜੂਝਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਉਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ। ਸੱਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੁਨੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ
बोलते ने वो शब्द ने, वो धुनिया के रूप च ने, कोई संसा नहीं है सानू। शब्द हज़ारां साल पहलों सृष्टि की शुरुआत तो शब्द का जन्म हो गया है। और इथों तक भी बाणी च लिखिया भी असल विच इस सृष्टि का जन्म ही शब्द तो होया। हुक्म विच ही उत्पत्ति हुई, हुक्म विच परलो आ गई, हुक्म विच फिर दोबारा वो करता उत्पत्ति कर देंदा। हुक्मै उत्पत, हुक्मै परलो, हुक्म दे विच ही उत्पत्ति हुई। हुक्म की है? परमात्मा दा उत्थे शब्द का अर्थ की होवेगा? हुक्म। रब दे हुक्म विच सृष्टि की आरंभता हुई, रब दे हुक्म विच सृष्टि मिट जाती है। रब दा हुक्म हुंदा है ते शब्दे ही फिर ओपत होवे। शब्द दे विच ही सृष्टि का जन्म होया। शब्द च ही सृष्टि हुक्म नाल ही संसार तो कूच कर गई, फिर हुक्म दे विच दोबारा तो फिर सिरजी गई, फिर बन गई। ये निज़म है करते दा। पर हैरानी हुंदी है, पंछी जो बोलदा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं समझ पाते, पर पंछी की आवाज़ नूं, पंछी के शब्द नूं, पंछी की धुन नूं, पंछी के बोल नूं पंछी समझदा है। असी नहीं समझ सकांगे। कुत्ते का भौंकना भी एक शब्द है, वो भी भौंक रहा, वो भी एक शब्द है। कुत्ते के भौंकने नूं कुत्ता पछाण सकता है कि दूसरा कुत्ता मैनू की स्नेहा दे रहा है, पर मनुख नहीं पहचान सकता। सानू कुदरत ने एक अनमोल दात दिती है कि साडी जुबान ते जिहड़े शब्द आउंदे ने वो शब्दां दा स्वरूप बनदा है। उन्हां स्वरूपां नाल सानू समझण दी मत सच्चे पातशाह ने दिती है। असीं जदों जुबानों बोलदे हैं, शब्द दा रूप बनिया, दूसरे दे कन पिया ते असीं समझ गए। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया ना भी पशुआ मनुख दे अंतर अंतर यह है, शब्द सुरत को विवेक अविवेक है। शब्द अते सुरत दा जिहड़ा ज्ञान है, बोध है, वो मनुख कोल है, पशु कोल नहीं है। बोलदा जरूर है पशु, पर पशु पशु दे बोध नूं पछाण लेगा। साडे बोले हुए शब्दां नूं पशु नहीं समझ सकदा, वो शब्द ने। पर असल जिहड़ी कहानी है, असीं गुरु शब्द की गल करनी है कि गुरु शब्द दा साडी जिंदगी विच की महत्व है। गुरु शब्द सानू क्यों गुरु साहिब ने गुरु शब्द नाल जोड़िया? मुख मंतव की सी? इस तो पहला गुरु परपाटी जिहड़ी वो शरीरां नाल चलदी सी। गुरु नानक साहिब तो पहला कदे भी किसे ऋषि मुनि पीर पैगंबर भगत वली नबी औलिया गौस कोई भी सी, इस धरती ते हर आने वाली शक्ति ने शरीर नूं ही गुरु मन्निया और शरीर दे कदमां विच ही झुकदा रहा। शरीर अगे झुकिया है। पर एक गुरु नानक साहब वाहिद ऐसे गुरु हुए जिन्हां ने इस सृष्टि अंदर डंके दी चोट ते सारी कायनात नूं समझाया कि कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता। आई ते विलखणता सी। जदों सानू प्रमाण रूप विच गुरु नानक साहब पातशाह दे ये बचन पढ़न नूं मिलदे ने ना, ये सानू मिले ने 1517 तो 1518 दी जिहड़ी दूजी प्रचारक फेरी सी गुरु नानक साहब दी। जदों गुरु नानक साहब सुमेर पर्बत ते सिद्धां नाल मिलनी करदे ने, सिद्ध गोष्ठ दी बाणी दी रचना हुंदी है। अलग अलग थावां ते गोष्ठियां होईयां ने, एक थां ते नहीं सारी सिद्ध बाणी दी गोष्ठी होई, अलग अलग थावां ते अचल बटाले की धरती ते भी सिद्ध मिलते रहे। इथों तक भी इतिहासकारां लिखिया भी करतारपुर साहब भी सिद्ध गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं मिलण आउंदे रहे। सिद्धां दा मिलाप सुमेर पर्बत ते गुरु नानक साहब नाल हुंदा है। उस वेले गुरु नानक साहब पातशाह 1517 और 18 दे पीरियड विच जदों सिद्धां नूं मिले ने, उस वेले प्रमाणिक तौर ते श्री गुरु नानक देव साहब ने शब्द गुरु लिख के गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर मोहर ला दी, ताकि किसी के मन विच भुलेखे की कोई गुंजाइश ना रहे, कोई शक ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। उस दुविधा नूं खत्म कर दिता। उत्थे सिद्धां दा एक सवाल सी जिथे आपां ये प्रचलित शब्द है, और करीब करीब जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गल हुंदी है, शब्द गुरु की गल हुंदी है,
ये प्रमाण आम तौर पर प्रचारक वीर रसना तो अलापदे ने और करीब करीब ये संगत नूं भी याद हुंदा है। सिद्धां दा सवाल सी कि किहड़ा है ऐसा समा जदों सृष्टि दी उत्पत्ति हुंदी है, किहड़ा समा है जदों मत लैनी है, ते किहड़ा है तेरा गुरु जिसदा तू चेला है। 4 सवाल गुरु नानक साहब ते सिद्ध करते हैं। उन्हां 4 सवालों का जवाब सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब ने बाणी दे विच दिता है। और उस शब्द नूं गुरु नानक साहब जदों बयान करते हैं ना, सिद्धां दे चौंकड़े खुल गए, हैरान हो गए सिद्ध। उन्हां दी शरीरक क्रिया तब्दील हो गई, वेखण विच उन्हां दे चेहरे उन्हां दे रंग उड़ गए कि अज तो पहला इस धरती उत्ते ऐसा लफज कदे किसी ने नहीं सी आखिया, क्योंकि अज तो पहला इस मिट्टी दे 5 तत्तां दे बने पुतले दी पूजा ते होई है, पर शब्द गुरु दी पूजा किसी ने इस धरती उत्ते अज तो पहला नहीं सी कीती, नहीं सी कीती। हैरान हो जाना सिद्धां दा सुन के, क्योंकि पहली बार होया सी। ते इस तो पहला बड़े बड़े ज्ञानवाना ने, बड़े बड़े विद्वाना ने, बड़े बड़े तपस्वियां ने अपने नाल गुरु शब्द ही जोड़िया, ते अज ते जना खना गुरु शब्द अपने नाल लाई फिरदा। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी ने, अज तुसीं अनेक चैनल इदां दे बने हुए ने, उन्हां दे उत्ते जिक्र तुहानूं मिलेगा। हर ज्योतिषी अपने आप नूं गुरु अखवाउण लग पिया। कमाल हो गई है। गुरु कोई एडा छोटा शब्द सी? ये ठीक है, समय दे नाल उस्तादां लई ये शब्द वरते जांदे सन। अज जदों मनुख कोल किसी तरह का अखरी ज्ञान आ गया है, कोई किताबी ज्ञान आ गया है, तो किताबी ज्ञान नाल कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच धन श्री गुरु नानक देव साहब ने जदों शब्द गुरु का रुतबा दिता गुरबाणी नूं, ये दे तां पहलों ही दिता सी, पर मोहर सिद्धां दे कोल बैठ के लाई सी। और हजूर गुरु नानक साहब ने साडी झोली विच ये जो खजाना पाया है ना जी, ये इन्ना बेशकीमती है, ये कथन ते कहण तो बाहर है। किवें असीं बयान कर देंगे शब्द की महिमा नूं? साडे कोलों शब्द अल्फाज नहीं हैं कि शब्द की महिमा की है। मैं इस तो पहला अर्ज करां, इस धरती उत्ते जदों तक शरीरक गुरु मौजूद रहे ने, शरीर विच गुरु साहिबान भी आए ने, उन्हां शरीरां दा सन्मान किया गया है, कोई संशय नहीं। क्योंकि जिस शरीर दे माध्यम नाल शब्द धरती ते आया है, उस शरीर का भी वक्ती तौर पर सन्मान होया है और करना बनता है। जिस शरीर के राही ज्ञान वंडिया जाता है, शरीर का सन्मान है। बड़े सत्कारयोग सिंह साहब विराजे ने, उन्होंने शरीर का सन्मान असीं क्यों चुक के करते हैं? क्योंकि उन्होंने कोल एक खजाना है बाणी का, उन्होंने कोल अनमोल विचार ने गुरु दे। जदों मनुख दे शरीर दे माध्यम नाल कोई उत्तम विचार प्रगट होंदा है, वो शरीर पूजन योग हो जाता है। जिवें बाणी च एक बचन दर्ज किया है भी घे पट भांडा कहे ना कोई, जेड़ा घ्यो वाला कुप्पा सी वो पहले समयां विच चमड़े का बनता सी, ते चमड़े दे कुप्पे विच घ्यो भर के वो बाजारां विच वेचिया जांदा सी। पर हैरानी सी कि उच्च नीच दा रौला पाउण वाले लोग उस चमड़े दे कुप्पे विचों घ्यो लैण लग्गिया इनकार नहीं सी करदे, उन्होंने अपनी खुशी नाल स्वीकार कर लेंदे, प्रवान करते सन। कहन लगे इसे तरह जदों किसी शरीर अंदर सच टिकदा है, सत टिकदा है, वो शरीर भी सन्मान योग हो जाता है। किसी कागज के टुकड़े उत्ते ज्ञान दीयां गल्लां लिख दित्तियां जाण, असीं उस कागज के टुकड़े नूं भी नमस्कार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूप तैयार होए ने, होए ते कागज तो ने, वो कागज नाल किताबां भी बणियां ने जिन्हां ते लचर गीत भी लिखे होणगे। उसे कागज नाल बहुत सारा साहित लिखिया गया है। पर एक गल याद रखियो, उन्हां नूं लोकां ने झुक के नमस्कार नहीं कीती,
ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਹਿਮ, ਸਰੀਰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਲੋਕ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਖੌਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਭੈ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੈਠੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨਨ। ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਰਨ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਵੈਸ਼ਿਆਲਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਰਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਧ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਧੇਰਾ ਠੋਕਰਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ
प्रगटाओ करदी है। जिवें ही दीवा बलदा है, दीवा बलै अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। जदों दीवा जलदा है अंधेरा समाप्त हो जाता है और धार्मिक ग्रंथां दा पाठ पठन, गुरबाणी दे शब्द, गुरबाणी विचार साडी मत वाले पापां दा खात्मा कर दिंदी है, सानू ज्ञान दा सोमा बख्शदी है। ऐसे गुरु दा अनमोल ज्ञान शब्द रूप विच साडे कोल है और इस शब्द की जिन्नी तारीफ कर लोगे वो थोड़ी है। और एक गल होर, शरीर ने हमेशा साडे नाल नहीं रह सकना हुंदा। शब्द गुरु की विलक्षणता की है? शरीर ने साडे नाल नहीं रह सकना। अज कोई गुरु शरीर करके किते मौजूद है, तुहानू चल के उहदे कोल जाना पेगा जां वो चल के तुहाडे कोल आएगा। पर शब्द गुरु वास्ते कोई समा मुकर्रर नहीं है। शब्द गुरु ते समय का कोई असर नहीं। इसलिए तुसीं एक शब्द वरते हो, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब। क्यों शब्द वरतते हैं असीं? क्योंकि समय का कोई असर शब्द ते नहीं होना। हाँ, कबीर साहब ने एक जिक्र किया इस संबंध विच। वो कहते ने ये अखर खिर जाएंगे, जिहड़े अखर लिखे ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप लिखे गए, लिखे हुए स्वरूप ने बिरध भी होना है, अखर भी पुराने होने ने, घस जाणगे, मिट जाणगे, फट जाणगे, पर उन्हां अखरां विच जिहड़ा ज्ञान गुरु शब्द है वो कदे समाप्त नहीं होएगा। ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। जिहड़ा अखर रब दी सिफत वाला है वो अखरां विच जो ज्ञान दे रूप विच मौजूद है उन्होंने समाप्त नहीं किया जा सकता। अखर लिखे हुए तो समाप्त हो सकते ने, पर अखरां दा ज्ञान कदे समाप्त नहीं होएगा। अज ते विज्ञान ने यह गल सिद्ध कर दी है। मनुख जुबान तो जो बोलदा है, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वो आसमान विच फिजा विच रहिंदा है, वो कदे समाप्त नहीं हुंदा। विज्ञान का पूरा पूरा यतन है किसी तरीके जुबान दे बोले हुए शब्दां नूं अपने काबू विच कीता जाए। विज्ञान की कोशिश है, यतन विच है विज्ञान। मैं तो कहना यह हो जाए, जिथे इन्नियां उपलब्धियां विज्ञान ने कीतियां ने, हासिल कीतियां ने, किते ये भी हो जाए तो गुरु नानक साहब की रसना के बचन उदां तां साडे कोल ने, असीं पढ़दे हां, पर गुरु नानक साहब किवें उचारदे सन वो साडे कन्नां विच कदे सुणन नूं मिल जाण। किस तरह जंग युद्ध के मैदानां विच गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिंह जयकारे छड्डदे सन, वो धुनियां जे विज्ञान किते पकड़ लै वो साडे कन्नां दे स्रोत बन जाण, कैसा सुख प्रतीत होवेगा। तो जुबान दे बोल भी फिजा विच रहिंदे ने, ये जांदे नहीं, ये मिटदे नहीं, ये समाप्त नहीं हुंदे। कदे विज्ञान समर्थ होया तां जरूर इन्हां नूं अपनी गिरफ्त विच लएगा और बड़ा वड्डा खजाना इस सृष्टि विचों पुरातन साडे हथ लग सकदा है। और वो अनमोल दात शब्द दे रूप विच, ज्ञान दे रूप विच, रोशनी दे रूप विच साडे समक्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की अनमोल बाणी मौजूद है। सिख नूं किते भी भटकण की गुंजाइश नहीं, उन्होंने किसी देहधारी शरीर नाल जुड़न की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब के संबंध विच ये बचन तुसीं पढ़दे हो ना, भाई गुरदास जी की रसना तो भाई गुरदास साहब कहते ने भी गुरु नानक देव साहब ने जिथे भी जाके किसी नाल चर्चा कीती आ, वो जुबानी चर्चा नहीं, शब्द नूं सामने रख के पहला फिर उथे विचार की आरंभता हुई है, शब्द नूं समक्ष रखिया ते उथे शब्द दे विचार तुसीं भाई गुरदास जी की रसना तो पढ़ के ते वेखो। भाई साहब कहंदे ने ना अपनी रसना नाल भी शब्द जिती सिद्ध मंडली की तुस अपना पंथ निराला। गुरु नानक ने सिद्धां दी मंडली नूं शब्द की शक्ति नाल जित्या है, वो शब्द साडे कोल मौजूद है। असीं भी अपने जीवन विच जेतू हो सकते हैं जे असीं शब्द गुरु दे नाल अपना राफता कायम कर लईए। सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब किरपा करन, जो अनमोल बख्शिश साडी झोली विच पई है उस बख्शिश नूं असीं इन्ना संभालीए
इन्ना श्रेष्ठ इन्ना उत्तम मन लईए कि दुनिया दीयां सारियां ताकतां दुनिया दे शरीरक गुरु इस गुरु ग्रंथ साहिब शब्द अगे झुक जाण ताकि असीं अनमोल खजाने दे हकदार बने रह सकीए। विचारां करदिआं बेअंत होईयां भुल्लां खिमा करनियां, गुरु बाणी दे बचन गुरमत विचारां अपने जीवन का आधार बना लैनियां। बहुत ही अदब सत्कार सहित सारी संगत गुरु फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।